Hello everyone, very good afternoon. And sorry, today I'm Good late, afternoon. some internet issues. And the topic for the discussion is memory. And after memory, we have only one block remaining with the motivation and emotion. So today we will cover memory, which is unit 7. And it is also an interesting topic as well. So we will start with the nature and the scope of memory in this unit. So I will let you know the content first. Then we will go ahead. So we will read about nature and scope of memory. Then we have types of memory here. First is declarative and then non-declarative, or you can say explicit and implicit. And the third one, we have sensory memory. So we have three types of memory, and then we have some models of memory as per some psychologists. They have explained some of the memories and some of the models of the memories under their experiment. So we have three important models over here. First one is traditional model of memory, and the next one is the level of processing model, and the last one is an integrative model working memory. And then we have some theories of forgetting, कि हम भूलते क्यों हैं, कैसे भूलते हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है. So the theories of forgetting. And then we have strategies for enhancing memory, how we can develop good memory power in our brain, and using some images and using the organization methods. So we have some methods over here which help us to enhance our memory. And later we have some applications of memory which we use in our daily life. And it is again differentiate under three topics, which is autobiography memory, what hap- what has happened in my life, and the second one is false memory, and third one is flashbulb memory, memories of emotionally charged events. So basically we have some of topics regarding memory in this unit. So I'll start with the nature. So सबसे पहले इसमें we have one example over here in order to understand the concept of memory. So we have one example over here. There is a cat. She enters into a room and she think, why should I enter this room? Like मैं को यहाँ पे क्यों आना चाहिए room में? वो भूल गई थी वहाँ पे आके. So in the first photo you can see, uh, I can't remember why I walked into this room. And the second photo, it says, maybe if I went out and come back in again, I will remember why I walked into this room. But in the third photo, it says, great. Now I can't remember why I walked into this room. So this is just an introduction and one example. So if I come to the definition of the memory, it says, it is not just the story of Garfield only. You might have also have experienced some similar situation. Means कि हमारे साथ डेली लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, एकदम इंस्टेंटली भूल जाते हैं. हम कुछ काम कर रहे होते हैं, एकदम से याद ही नहीं रहता कि मैं क्या करने वाला हूँ. सपोज कि मैं घर से निकला हूँ दुकान पे कोई सामान लेने के लिए, बट सडनली आई थॉट कि मुझे याद ही नहीं है मुझे क्या लेना था. बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है लाइफ में. So this is a concept of memory, and psychologists have also tried to uncover its mystery and investigated how it affects human behavior. कि memory की वजह से human behavior पे क्या effect पड़ता है. So बहुत सारे psychologists ने research की है, पढ़ा है memory के बारे में, observe किया है कि memory कैसे बनती है, कैसे हम store करते हैं information, and कैसे हम उसे use करते हैं recover करने में. So we have different models to understand its structure. So in objectives, we have explained the concept of memory and nature. Once we will go through with the same unit, we will be able to explain the concept of the memory and the different types of memory and the various models of memory and the concept of forgetting and different theories explaining it. And later we have various strategies for enhancing memory. Enhancing memory मतलब memory को किस तरह से मैं अच्छे से use कर सकता हूँ, कैसे उसको develop कर सकता हूँ, कैसे मतलब फॉर मेमोरी को मैं ना भूलूं, उसको कैसे अच्छे से स्टोर कर सकता हूँ, क्या तरीके हैं, कैसे मैं उसको अच्छा बना सकता हूँ. So we have this kind of concepts in this unit, and later we have the autobiographical memory, false memory, and flashbulb memory. So we'll start with the nature and the scope of memory here. कि नेचर क्या है मेमोरी का और उसका स्कोप क्या है. सो बेसिकली द डेफिनेशन व्हिच वी हैव ओवर हियर, the mental process you use to answer all of this question is known as memory, which is like हमने कल डिनर में क्या खाया था,
व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार और अ साइकिल। अगर मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछूंगा तो हम क्या करेंगे, सडनली वी विल ट्राई टू थिंक एंड रिमेम्बर कि मैंने कल क्या खाया था, एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, या मैं साइकिल या फिर कार में कैसे चलाता हूँ, एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट द हाईएस्ट मार्क इन योर हाईएस्ट स्कूल, कि मुझे कैसा फील हुआ था जब मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे या मुझे बहुत खराब मार्क्स मिले थे। तो ये क्या है, ये एक मेमोरी है जो हमारे दिमाग में स्टोर है, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं माइंड में, और जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं माइंड से कि हाँ मैंने ऐसा काम किया था, लेट मी थिंक एंड देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ से हम जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको माइंड से स्टोर जो होती है वहां से निकाल के हम आंसर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी बेसिकली क्या होती है, एक जगह होती है, डाटाबेस है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में होता है कि हमारे पास फिजिकल मेमोरी होती है जिसको हम रोम बोलते हैं, और यू कैन से हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी मेमोरी होती है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कि उनको रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। So, the definition over here, the memory refers to the ability to retain information and reproducing it over a period of time when required to perform a cognitive task. तो ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि ये एक एबिलिटी है हमारी टू रिटेन इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन को दोबारा से स्टोर, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जब हमें उसकी जरूरत होती है काफी टाइम बाद। कि मतलब मैंने कोई 10 साल पहले अगर मैंने जो काम किया था या मैंने कोई भी एक कोई स्पेशल इंसिडेंट हुआ था तो वो मेरे माइंड में अभी तक स्टोर होगा, एंड आई कैन रिप्रोड्यूस इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेन एवर आई रिक्वायर्ड। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है मेमोरी के अंदर, एंड इट इज बेसिकली comes under encoding, storage, and retrieval. So this is the three process which we use while talking about the memory. सो फर्स्ट वन इज इनकोडिंग एंड द स्टोरेज एंड द रिट्रीवल। ये हमारे क्या है, तीन प्रोसेस हैं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं मेमोरी, हमारे माइंड में मेमोरी कैसे बनती है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और कैसे हम उसको रिवर्ट बैक करते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज एनकोडिंग, जो हमें बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर बाय द मेमोरी सिस्टम। सो हियर इट सेज, जो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत बार बता चुका हूँ इस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की क्लासेस में। सेंसरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम सेंसेस के द्वारा फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको क्या करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं, या माइंड में हम उसको ट्रांसफर करके हम उसको यूज करते हैं अपने एज ए परसेप्शन बनाने में, या फिर थिंकिंग प्रोसेस में, या फिर अभी मेमोरी में। तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे कन्वर्ट करने के बाद, तो वो जाता है इनकोडिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज, कि मैंने ऑब्जर्व तो कर लिया, आई हैव यूज्ड माय सेंसरी organs in order to gain the knowledge and the information, but now I have to store it somewhere in my mind, right? कि मैंने ऑब्जर्व तो कर लिया, अभी मुझे उसको स्टोर करने की जरूरत है, सो दैट उसको मैं आगे यूज कर सकूं अपने फर्दर एक्सपीरियंस के लिए, या फिर इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो सेकंड स्टेज इज स्टोरेज, जहां पे मैं क्या करूंगा, the received information from memory systems are stored so that it can be used at a later time also। तो जो मैंने इनकोडिंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया था, जो मैंने गेन किया था, उसको मैंने अब स्टोर कर दिया अपने माइंड में। So guys, you can put yourself on mute so that there will be no disturbing sound. So now the two process has been completed. We have used the encoding process in order to gain the information from the sensory organs into my mind, and then I need some space where I can keep that information. So it is basically called storage, जहाँ जिसे हम storage बोलते हैं उसको store करने को. And the third one is retrieval. Retrieval क्या हो जाएगा हमारा वो process? It refers to locating and bringing the stored material information to one's awareness when required to complete a task. So the third one says कि मैंने observe कर लिया encoding में, उसके बाद मुझे storage में मैंने store कर लिया information को, अब retrieval में क्या करूँगा, जो stored information है, I will use that information to complete a task in my future.
तो ये मैंने क्या किया, लोकेट कर दिया उस इंफॉर्मेशन को और उसको क्या किया, यूज किया मटेरियल इंफॉर्मेशन को टू वंस अवेयरनेस व्हेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब फ्यूचर में जब मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा जो मैंने स्टोर की थी, तो उसी को हम बोल देंगे रिट्रीवल प्रोसेस। सो वी हैव बेसिकली थ्री प्रोसेस ओवर हियर फॉर मेमोरी, एंड नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है हमारे पास। So basically we have three types of memory over here, which is discussed under this unit. The first one is declarative memory, non-declarative memory, and the third one is sensory memory. So we have three types of memory over here. तो क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में, और क्या कहते हैं, किसने ये थ्योरीज जो बनाई हैं, टाइप्स जो मेमोरीज की हमें बताया है, और इसके अंदर क्या क्या फर्दर टाइप्स इनके होते हैं, वर्किंग, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, प्राइमिंग, कंडीशनिंग एंड मोटर और प्रोसीड्यूरल। सो वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरीज। सो फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव क्या होती है, मैं डिक्लेरेटिव अपने वर्ड्स में बता देता हूँ। तो डिक्लेरेटिव वो टाइप की मेमोरी होती है जिसको हम कॉन्शियसली, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाए। जैसे मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, सो आई नीड दिस इंफॉर्मेशन फॉर माई फ्यूचर रेफरेंस एज वेल, सो आई एम इंटेंशनली, आई एम कॉन्शियसली रीडिंग द सेम चैप्टर एंड विल ट्राई टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन माई माइंड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे मेरे दिमाग में स्टोर रहे। तो इस काइंड की मेमोरी, इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं, या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। इफ आई फर्दर एक्सप्लेन दिस, so it says it refers to the to that memory system which can be controlled consciously, for which we are aware of in some form. तो ये हमें क्या कह रहा है कि ये उस टाइप की मेमोरी होती है जिसको हम कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसली। जिसको हम कॉन्शियसली, मतलब क्या होता है कॉन्शियसली, मतलब अपने होशो हवास में। और अनकॉन्शियसली मतलब होता है जो मैं नहीं चाहता वो अपने आप ही बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसका लिटरल मीनिंग तो मतलब आप देख लेना खुद ही, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग यही होता है, कॉन्शियसली जो हम अपने ध्यान से करते हैं, मतलब हमारी होशो हवास में जो हम करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस मतलब जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसको हमने हमने ध्यान नहीं दिया जिस मेमोरी पे। तो ये वो टाइप की मेमोरी है जिसको हम कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसली, एंड फॉर विच वी आर अवेयर फॉर इन सम फॉर्म, जिसके बारे में हमें पता है कि वो स्टोर है हमारे दिमाग में। तो ये हो जाती है हमारी डिक्लेरेटिव। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एंड इंटेंशन, बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि ये मेमोरी मेरे दिमाग में स्टोर हो जाए, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत है। तो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इंटेंशन भी हमारी वैसी होनी पड़ेगी, और अटेंशन भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट दैट इन्फॉर्मेशन टू कीप इन माई माइंड। एंड द नेक्स्ट इट सेज इट जनरली डिक्लाइन विद द एज। ये क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्लाइन हो जाती है। जैसे हम ऐसे मिसकंसेप्शन है, और क्या कहते हैं, बोलते भी हैं ऐसा लोग कि भाई एज के साथ साथ, जैसे अभी अगर मैं 40 एज का हूं और कोई 20 एज का है, या फिर और एक 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल के बच्चे को ऐसी मेमोरी ज्यादा होती है उसके पास, कि वो जल्दी से चीजों को याद कर सकता है, सीख सकता है, उनके माइंड में रख सकता है। लेकिन जैसी जैसे एज बढ़ती है, तो हमारी ये जो पावर होती है ना, चीजों को ऑब्जर्व करके माइंड में रखने की, इंटेंशनली जो होती है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसली, ये पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू एज। तो ये यहाँ पे बताया गया है। एंड द नेक्स्ट it says recalling the name of a friend, remembering a contact number or ATM pin involves declarative memory. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि recalling the name of a friend, कि मैं को किसी ने मुझसे पूछ लिया कि तुम 8th क्लास में पढ़ते थे, तो बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से दोस्त थे। तो ये क्या हो जाएगी, एक डिक्लेरेटिव मेमोरी मेरी हो जाएगी। और किसी ने पूछा रिमेम्बरिंग अ कॉन्टैक्ट नंबर, कि मुझे कौन से कॉन्टैक्ट नंबर मुझे याद हैं, जो जो मुझे याद होंगे, तो वो कौन सी मेमोरी के अंडर मुझे याद है, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंडर याद है, क्योंकि मैंने इंटेंशनली उनको याद किया, तभी मुझे याद होंगे। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूं, कि मेरे से कोई पूछे तेरे को कौन से कॉन्टैक्ट नंबर याद है, तो मुझे कभी-कभी तो अपना नंबर भी याद नहीं आता। मुझे जैसे फैमिली में, हाँ, पापा का नंबर याद है, मम्मी का नंबर याद है, या किसी भाई का नंबर याद है, या एक आधे दोस्त का नंबर याद है, जिसको इंटेंशनली मैंने याद किया है। बाकी से मैं इतने लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ, मेरे को किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है। तो जो मेरे इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर स्टोर है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर किसी का भी,
या फिर एटीएम पिन इन्वॉल्व्स डिक्लेरेटिव मेमोरी। एटीएम पिन क्या होता है? सपोज मैं 1 महीने में 1 ही बार एटीएम यूज़ करता हूँ और बाकी सारा ट्रांज़ैक्शन मैं अपना ऑनलाइन यूज़ करता हूँ। मैं मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ कि बाकी सब ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, बाकी एटीएम में मैं कभी-कभी जाता हूँ। तो एटीएम में कभी-कभी जाता हूँ तो मुझे पिन तो याद होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज़ घर में आके अपने पिन देखता हूँ कॉपी खोल के कि हाँ, ये मेरा ये पिन है। मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ मैं महीने में 1 दिन यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो याद रहता है, ठीक है? तो क्यों याद रहता है? क्योंकि वो जो मेमोरी है, वो मैंने इंटेंशनली अपने माइंड में स्टोर की है और जिस मेमोरी को हम इंटेंशनली अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। So in declarative memory, we have some subsystems। सबसिस्टम जैसा यहाँ पे कहा गया है, फॉलोइंग आर इट्स थ्री सबसिस्टम्स, कि कैसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी का प्रोसेस क्या है और किस किस टाइप्स के ये स्टोर होती है। तो फर्स्ट वन इज वर्किंग मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। सो वर्किंग मेमोरी में क्या आता है? इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है, कि यह सबसे मेन मानी जाती है, कॉन्सियसनेस जो हमारी होती है उसमें हमको ये सबसे मेन मानी जाती है वर्किंग मेमोरी। क्यों मेन मानी जाती है? दिस सिस्टम ऑफ मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इमीडिएट यूज। तो ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस वर्किंग मेमोरी में क्या होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और मेमोरी को प्रोसेस करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, लेकिन एकदम इमीडिएट यूज के लिए। ठीक है, उसको स्टोर नहीं करते हम, उसको सिर्फ इमीडिएट यूज करते हैं कि मैंने देखा, समझा, दिमाग में स्टोर किया और इंस्टेंटली मैंने उसको यूज किया। तो उसी को हम बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। इसमें एज ए एग्जांपल दिया हुआ है, सच एज रिमेंबरिंग अ फोन नंबर व्हेन डायलिंग इट ऑन अ लैंडलाइन, और या फिर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स वर्किंग मेमोरी और लिसन टू इट्स स्पीच। तो वर्किंग मेमोरी में क्या होता है, जैसे इसमें बोला है कि लिसन टू इट स्पीच। अगर मैं कोई स्पीच दे रहा हूँ, या जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं अभी तुम्हें स्पीच दे रहा हूँ या मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे होता है, तो तुम पूरी स्पीच मेरी सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन पूरी स्पीच सुनने के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मैंने क्या क्या बताया था, मैंने 1 घंटे का सेशन लिया था, अब तुम्हें भी 1 घंटे के अंदर सेम सेम जो मैंने बोला था, सेम सेम तुम्हें रिपीट करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज हमारी ऐसे इंटेंशन ही नहीं है। और जो वो मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी है? वो वर्किंग मेमोरी है, जो इमीडिएट यूज हो रही है मेरी। हाँ, तुमने एक एक वर्ड मेरा सुना है, सब चीज सुनी है, लेकिन तुम उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते दोबारा, जैसे मैंने किया है सेम। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन, जो मेमोरी हम यूज करते हैं एक थोड़े इमीडिएट यूज के लिए, और जो प्रोसेस हम इमीडिएट यूज करने के लिए मेमोरी को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्किंग मेमोरी, जिसमें हम प्रोसेस करते हैं मेमोरी को और स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसको हम बाद में भूल जाते हैं। तो जैसे रिमेम्बरिंग अ फोन नंबर व्हेन डायलिंग इट ऑन अ लैंडलाइन, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कोई फोन नंबर मुझे मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरे को फोन में डायल करना है, तो क्या करते हैं, कई बार हम उसको याद कर लेते हैं कि एक बार याद कर लिया, हाँ 5 डिजिट मैंने याद कर लिए, 5 ये याद कर लिया, और उसी टाइम फोन में मैं डायल कर दूंगा। लेकिन डायल करने के बाद अगर 1 मिनट बाद में मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे वो याद ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो वर्किंग मेमोरी के अंडर मैंने उस फोन नंबर को याद किया है, इमीडिएट यूज के लिए याद किया है। तो ये हो जाती है हमारी वर्किंग मेमोरी। द नेक्स्ट वी हैव सिमेंटिक मेमोरी। हियर वी इट सेज द वर्ड सिमेंटिक refers to a meaning or a logic. This subsystem of memory store knowledge about the word, facts, concept, logic and meaning associated with the words or the symbols. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसको अगर मैं और सिमिलर मीनिंग, अगर सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं, तो ये कह रहा है कि ये वो टाइप की मेमोरी होती है जो ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, बिकॉज वो नॉलेज, कोई भी अगर मैंने आपको बात बोली, मैंने कोई सेंटेंस बोला, या मैं 1 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे? ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्किंग मेमोरी में क्या किया, तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड मेरा याद नहीं रहेगा कि मैंने कैसे लेक्चर दिया था, कैसे कैसे बोला था, तो वो हो जाएगी हमारी वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट, कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर तो दिया है, अगर मैं 1 घंटे बाद अगर तुमसे बोलूं कि कुछ तुमने क्या क्या पढ़ा था, तो तुम एक कम से कम 4-5 सेंटेंस, 10-6-7 सेंटेंस तो बोल पाओगे ना, कि हमने यार, हमने तो मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी थी और मेमोरी की डेफिनेशन में ये था, उसके बाद हमने ये देखा था मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव, सेंसरी मेमोरी। तो आप कुछ कुछ उसको बता पाओगे। और वो क्यों बता पाओगे? क्योंकि आपने क्या किया, मेरे सब वर्ड्स को सुन के जो जो आपको लगा कि ये आपके लिए काम की चीज है, ठीक है, कि आपको ये स्टोर करनी पड़ेगी आपको एज अ नॉलेज, क्योंकि आपको फ्यूचर में यूज करनी पड़ेगी, उस टाइप की मेमोरी को हम बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है द वर्ड सिमेंटिक रेफर्स टू ए मीनिंग और लॉजिक। तो ये क्या, सिमेंटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है?
इसका मीनिंग ही लॉजिक या फिर मीनिंग होता है। दिस सब सिस्टम ऑफ मेमोरी, जो ये पार्ट है मेमोरी का, सब सिस्टम जो है ये क्या करता है, नॉलेज को स्टोर करता है अबाउट द वर्ड्स, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक एंड मीनिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड्स और द सिंबल। तो ये नॉलेज को स्टोर करता है सारी जो जो कहाँ से नॉलेज मिलती है हमें, वर्ड से मिलती है, फैक्ट से मिलती है, कॉन्सेप्ट से मिलती है, लॉजिक से मिलती है, किसी भी वर्ड के मीनिंग से मिलती है या सिंबल से मिलती है। जो हमें नॉलेज हमें उनसे मिलती है वो स्टोर हो जाती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी में। And the next we have episodic memory, and it says the memory associated with our experiences or life event is called as episodic memory. तो ये क्या कह रहा है, ये वो टाइप की मेमोरी होती है जो हमारे दिमाग में स्टोर होती है हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से। ठीक है, कि मैंने कोई पास्ट में एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि मुझे बाकी सब तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया था वो मुझे याद है। ठीक है, और वो हमेशा की बहुत टाइम के लिए मुझे याद रहेगा। मुझे उस पे ज़्यादा फ़ोकस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बा उसके लिए इंटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज़ कि मैं अगर कहीं घूमने गया हूँ, सपोज़ मैं केरल घूमने गया हूँ और केरल घूमते वक़्त मैं ये भूल गया मैं कौन से होटल में रुका था, ठीक है? लेकिन मुझे ये याद है कि हाँ, केरल में यार मैं बोट हाउस में रुका था और मेरा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की, वो ऑटोमैटिकली मेरे माइंड में स्टोर है क्योंकि दैट इज़ माय एक्सपीरियंस, दैट इज़ माय लाइफ इवेंट। So this kind of memories which associated with your experiences and with your life events, and they comes under episodic memory. So it is used, इसको हम use करते हैं, किस में use करते हैं, to recall past events such as how did you celebrate your last birthday, what did you eat at today's breakfast। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास्ट के इवेंट्स होते हैं, मैंने बताया लाइफ इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई तू गया था केरल घूमने गया था तो कौन से क्या क्या तूने यूज किया था, कौन कौन से होटल में रुका था और क्या तेरा एक्सपीरियंस था, जो जो मेरे से कोई पूछेगा तो जो मैं आंसर करूंगा तो वो मेरी हो जाएगी एपिसोडिक मेमोरी। तो मैं वो आंसर कहाँ से कर रहा हूँ, मैं अपनी एपिसोडिक मेमोरी से आंसर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का। तो बेसिकली वी हैव three subsystems of memory, of declarative memory, the working model, the semantic memory and the episodic memory। working memory में क्या होता है कि हम प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, लेकिन इमीडिएट यूज के लिए, ठीक है, उसको हम ज्यादा देर के लिए रखते नहीं है। इन सिमेंटिक मेमोरी हम क्या करते हैं, जो काम की चीज होती है हमारी, जो नॉलेज होती है, जो जो हमने कॉन्सेप्ट देखे, वर्ड्स देखे, लॉजिक देखा, मीनिंग जो भी हमने ऑब्जर्व किया, उसका जो नॉलेज वाला कंटेंट था वो मेरे दिमाग में स्टोर हो गया, एंड दैट कम्स अंडर सिमेंटिक मेमोरी। एंड द लास्ट वन इज एपिसोडिक मेमोरी, जो हमारी आती है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे लाइफ जो पास्ट के लाइफ इवेंट्स थे उनकी जो मेमोरी होती है वो आती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। एंड नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी वी हैव, इट्स नॉन डिक्लेरेटिव और इम्प्लिसिट मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मैंने क्या बताया, जो इसका मेन जो वर्ड था, वो मेमोरी जो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉन्शियसली। ठीक है, क्योंकि मैं इंटेंशनली उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंटेंशनली आई वांट दैट शुड बी kept in my mind। तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये अनकॉन्शियसली होती है। ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर भी मुझे वो याद है। ठीक है, तो ये होता है कि दैट सिस्टम ऑफ मेमोरी फॉर विच वी पोज नो अवेयरनेस, कि कोई ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ या मैंने कोई चीज देखी लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी उसमें, ना मेरी कोई अवेयरनेस थी, फिर भी वो चीज मुझे याद है अ, अब मेरी मेमोरी के अंदर। तो ये आती है हमारी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंडर। सो इट वर्क्स अनकॉन्शियसली एंड विदाउट एनी इफेक्ट्स एंड इंटेंशंस। तो यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। इट इज अनइफेक्टेड बाय एजिंग, ये एजिंग के साथ इफेक्ट भी नहीं करती, ये हमारे पास हमेशा रहती है, चाहे हम 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो या 100 के हो जाएं। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो हमारी होती है उस पर कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। एंड फॉलोइंग आर द थ्री फॉर्म्स, प्राइमिंग, कंडीशनिंग एंड द मोटर प्रोसीड्यूरल मेमोरी। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, तीन सब सिस्टम है इसके नॉन डिक्लेरेटिव के। सो प्राइमिंग में क्या आता है, इट इज अ प्रोसेस दैट वर्क अनकॉन्शियसली एंड हेल्प इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। दिस प्रोसेस सजेस्ट दैट मेमोरी कैन बी एक्टिवेटेड अनकॉन्शियसली ऑल्सो। तो ये कह रहा है कि ये वो प्रोसेस है जो काम करता है अनकॉन्शियसली, जो हम इंटेंशनली जिसको अपने में उसको यूज नहीं करते, वो अपने आप ही काम करता रहता है। एंड हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग, तो हमें हेल्प करता है स्पीड करने में। रिट्रीविंग मतलब जब हम इंफॉर्मेशन को बताते हैं किसी को, ठीक है, जो हम मैंने स्टोर किया, ऑब्जर्व किया, स्टोर किया, जब मैं उसको रिट्रीव करूंगा, जब मैं उसको फर्दर यूज करूंगा इन फ्यूचर, उसी को हम रिट्रीविंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है स्पीड अप करने के लिए, उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो ये आ जाता है हमारा प्राइमिंग के अंदर। कंडीशनिंग
कंडीशनिंग के अंदर आता है। कंडीशनिंग देखो मैंने कल बताया था, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता था कि जहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है? कि ये एसोसिएट रहेगी। कंडीशनिंग में हमेशा कोई भी चीज़ की हम बात, जिस भी चीज़ की हम बात करेंगे वो हमेशा एसोसिएट रहेगी किसी ना किसी और चीज़ से, और जहाँ पे एसोसिएशन होगा तो वहीं पे हम कहेंगे कंडीशनिंग। सो एज़ already discussed in the previous unit, that is a form of memory is responsible for learning as association between two stimuli, जहाँ पे एसोसिएशन होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लेट मी थिंक, अगर कोई एग्जांपल देना चाहता है जिसको पता हो तो एग्जांपल दे सकता है कि मैं कंडीशनिंग मेमोरी किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, इफ एनीबॉडी। तो इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर कंडीशनिंग, और किसी ने तो दिया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो कंडीशनिंग में हम एसोसिएट करके चीजों को याद रखते हैं। सपोज मैंने किसी फ्रेंड को कहा कि यार तुझे वो रिजॉर्ट याद है जहाँ पे हम घूमने गए थे और 3 दिन रुके थे? तो उसने बोला नहीं यार याद तो नहीं है। बोले अच्छा अच्छा, जहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, जहाँ पे हमें डीजे भी मिला था, जहाँ पे क्या कहते हैं बफे सर्विस भी हमें मिली थी, ठीक है? तो उसको वैसे रिजॉर्ट याद नहीं है। अगर मैंने किसी फ्रेंड से पूछा, वैसे उसको याद नहीं आया क्योंकि वो बहुत सारे रिजॉर्ट में जाता होगा, लेकिन उसको फिर एसोसिएट करना पड़ा किस चीज से। अच्छा यार जहाँ पे स्विमिंग पूल था, अच्छा मतलब जहाँ पे बार था, अच्छा जहाँ पे मतलब डीजे नाइट थी। तो वैसे उसने एसोसिएट करके उस रिजॉर्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है उसने। अगर मैं उसको ये बोलूंगा ना कि यार जहाँ पे वो स्विमिंग पूल था ना, जहाँ पे हम इतने सारे लोग गए थे, एंजॉय किया था, वो वाला रिजॉर्ट है, उसके बारे में बता, तो वो बता पाएगा कि अच्छा वो रिजॉर्ट वो तो दिल्ली में था, उस रोड पे था, और वहां पे तो इतने डिस्टेंस पे था, हमने इतना रेंट दिया था, या फिर ये अच्छी फैसिलिटीज थी। तो वो स्विमिंग पूल से या फिर डीजे नाइट से, उन सब चीजों से एसोसिएट करके बता पा रहा है। जब अगर मैं उसको ये चीजें नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, अगर मैं रिजॉर्ट के बारे में पूछूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंडीशनिंग मेमोरी वही मेमोरी होती है जिसको हम याद रखते हैं एसोसिएट करके किसी ना किसी चीज से। So this comes under non-declarative conditioning memory, and the third one is motor procedural memory. इसमें क्या होता है? The process of learning a motor skills is slow, but once it well learned, it becomes automatic in the nature. तो इसमें क्या होता है? मोटर प्रोसीड्यूरल मेमोरी में क्या होती है? जैसे मैंने कार चलाना सीख ली, ठीक है, मैंने गाड़ी चलाना सीखी, अभी ड्राइविंग क्लासेस ली हैं और मैं 3-4 साल से कार चला रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद अगर मैं कार चलाऊंगा तो क्या मैं भूल जाऊंगा? मैं नहीं भूलूंगा। सो this memory comes under the motor and procedural memories, जो memories मैं यूज करता हूँ अपने skills को याद रखने के लिए। जैसे मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को अगर इसको फ्यूचर में हमेशा याद रखना, हमेशा ही अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, सपोज कि मुझे साइकोलॉजी का टीचर ही बनना है इन फ्यूचर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ूंगा साइकोलॉजी को, और 1-2 बार रिवाइज कर लूंगा अच्छे से, और एक बार अगर मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो हमेशा के लिए वो मुझे याद रहेगी। तुम मुझसे चाहे तुम 10 साल बाद पूछना, 20 साल बाद पूछना, so I will always be able to answer the questions regarding your psychology course। तो ये वो टाइप की मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, लेकिन इनका प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार हमें उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन जब ये एक बार से लर्न हो जाती है तो इट बिकम्स ऑटोमेटिक इन नेचर, ठीक है, वो हमेशा ही याद रहती है। तो इसमें बेसिकली इसमें वो आती है जैसे हम कोई भी स्किल्स सीखते हैं, किसी ने क्या कहते हैं कुकिंग सीखी है, किसी ने कपड़े सिलना सीखा है, किसी ने या फिर गाड़ी चलाना सीखा है, तो ये जो स्किल्स होती हैं ये मोस्टली इसके अंडर आती है, मोटर प्रोसीड्यूरल मेमोरीज के अंदर। दैट इज इट डज नॉट नीड एनी फर्दर अटेंशन और कॉन्शियस एफर्ट्स सच एज द मोटर प्रोसेस इन्वॉल्व इन वॉकिंग डज नॉट नीड एनी कॉन्शियस एफर्ट। जैसे चलना सीखा है तो बच्चा जब पैदा होता है तब तो चलना नहीं सीखता, शुरू में वो चलना सीखता है, लेकिन एक बार जो चलने सीख जाता है तो क्या उसको दिक्कत होती है कभी कि यार मैं कैसे चलूंगा, कि आज मैं सुबह उठाऊं और उठ के मुझे आज ये याद नहीं है कि मुझे चलना कैसे है? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। वी ऑलवेज रिमेम्बर कि हाउ वी वॉक। सो इस टाइप की मेमोरीज आती है हमें मोटर और प्रोसीड्यूरल मेमोरी के अंदर। सो ये होगी हमारी नॉन डिक्लेरेटिव। और नॉन डिक्लेरेटिव मेन मैंने क्या बताया डिफरेंस क्या होता है, जो अनकॉन्शियसली होती है। हमने चलना सीखा था, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहते हैं वो अनकॉन्शियसली सीखा था, और अभी भी हमें ऐसा इंटेंशनली हम उसको याद करने की कोशिश नहीं करते कि मुझे याद रखना है, मैं डेली उठ के रिवाइज करता हूँ कि मुझे कैसे चलना होता है। तो ये हम कभी याद ही नहीं रखते, ये अनकॉन्शियसली चलता है, अपने माइंड में स्टोर रहता है हमेशा के लिए। सो ये आ गया हमारा नॉन डिक्लेरेटिव। द नेक्स्ट वन इज
सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो सेंसरी मेमोरी, सॉरी। तो सेंसरी मेमोरी वही हो जाती है, वो टाइप की मेमोरी जो हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। सो सेंसरी मेमोरी, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लीटिंग मेमोरी समटाइम्स, इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो ये परसेप्शन के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हमने वहां पे बहुत पढ़ा है इसके सेंसेस मेमोरी के बारे में, कि हम सेंसेस से कैसे परसेप्शन बनाते हैं, कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और कैसे हम दुनिया को देखने का नजरिया बनाते हैं, विच इज कॉल्ड ए परसेप्शन। तो परसेप्शन में भी हम क्या सेंसरी का बहुत यूज करते हैं, तो ये प्रोसेस ऑफ परसेप्शन के अंडर ही आता है। इसको बोलते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड और ऑफ आवर परसेप्ट फॉर अ वेरी brief period of time, ठीक है। ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट आर सेंसरी रजिस्टर्ड वर्क एज अ memory of system. The information from the environment first reaches sensory memory, and it requires attention is given to the information, it moves to the अदर मेमोरी सिस्टम्स। तो ये कह रहा है कि ये जो सेंसरी मेमोरी होती है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंसरी जो हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी आईज, हमारी ईयर्स, हमारे स्किन, हमारी टंग, हमारी क्या कहते हैं नोज जो होती है, इनके थ्रू हम जो जो सेंसेस ऑब्जर्व करते हैं, तो ये पहले बहुत कम टाइम के लिए रहती है। अगर मैं उनको अटेंशन दूंगा, अगर उनके बारे में बार बार सोचूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगी हमारे माइंड में। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, सपोज कि मैं अभी शाम को बाहर घूमने गया हूँ, एंड आई वाज क्रॉसिंग सम स्वीट शॉप। तो मुझे अगर कोई खुशबू आई है, सपोज कि मुझे समोसे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने उस सेंसेस के थ्रू मैंने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, जो मुझे वहां पे स्मेल मिल रही है। तो वो क्या हो जाएगी, स्मेल मिली मेरे को सेंसेस के द्वारा, राइट, मुझे नोज के थ्रू मुझे वहां पे स्मेल मिली समोसे की। तो वो क्या होएगी, मेरी सेंसरी मेमोरी होएगी, जो मुझे उस टाइम के लिए याद रहेगी। लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकल जाऊंगा, आफ्टर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या फिर तो थोड़ी देर बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा, तो मुझे याद नहीं रहेगी वो कैसी थी। ठीक है। तो ये सेंसरी मेमोरी होती है, जो हम सेंसेस के द्वारा हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, सेंसेस के थ्रू हम उसके ऑब्जर्व करके और याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको अटेंशन देंगे ना, कि हाँ, कि मुझे जैसे मैंने कोई रोड क्रॉस करी और मैंने कोई स्वीट की शॉप देखी और उसका नाम मैंने पढ़ लिया, और ये सोचा कि मैं फिर कभी आऊंगा यहाँ पे खाने के लिए, बहुत अच्छी मुझे शॉप लगी। तो मैंने क्या किया, अपनी आईज के थ्रू, मेरी जो सेंसेस है आईज, उसके थ्रू मैंने उस स्वीट शॉप का नाम पढ़ लिया और वहां से चला गया। ठीक है। तो वो चीज़ मैं भूल जाऊँगा अगर मैं उसको कभी भी रिवाइज़ नहीं करूँगा। सपोज़ मैं चला गया और घर चला गया, घर जाके बैठ गया, और 10 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ, यार मैं वहाँ से क्रॉस की थी, मैंने अपनी गाड़ी क्रॉस की थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा कि उस स्वीट्स का क्या नाम था, मुझे वहाँ पे जाने का बहुत मन है। ठीक है? तो हमारे साथ ऐसा ही होगा अगर मैं उसको रिवाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं घर चला गया, उसके बाद घर जाते ही मेरे माइंड में आ गया कि हाँ यार, वो शॉप का नाम ये था। सपोज़ वो बीकानेर स्वीट्स थी। ठीक है? तो अगर मैंने एक बार याद कर लिया बीकानेर स्वीट्स, से मैंने क्या किया, घर जाने के बाद अटेंशन दी उस चीज़ को। राइट, कि वो कौन सी शॉप थी, मैंने एक बार सोचने की कोशिश की, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि उसी दिन तो याद आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर होती है, तो तब मुझे याद आ जाएगा कि हाँ, उसका बीकानेर स्वीट्स था। तो जब अगर मैं उसको अटेंशनली उसको रिवाइज करूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, 10 दिन बाद भी अगर मैं सोचूंगा, तो मुझे शायद थोड़ा जोर लगाना पड़े दिमाग पे, लेकिन वो याद आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। तो यही आती है हमारी सेंसरी मेमोरी के अंडर, आती है ये टाइप की मेमोरी जो हम यूज करते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है, वो आती है हमारी सेंसरी मेमोरी। So, psychologists that argued that there is a visual sensory memory, an auditory sensory memory, and olfactory को बोलते हैं हम स्मेल सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जो हम स्मेल से जो मेमोरी बनाते हैं, एंड ए गस्टेटरी टेस्ट सेंसरी मेमोरी, तो ये टेस्ट सेंसरी मेमोरी हो जाएगा। टेक्टाइल, जो हम टच करके जो मेमोरी बनाते हैं,